ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازل سے ابد تک وفادار خدا کے پاک اور بزرگ نام میں میرے تمام عزیز بھائیوں بہنوں، آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت زوم میٹنگ میں شریک ہیں، آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے چند ایک پیجز پر ہیں، ہمارے ساتھ یوٹیوب پر اور واٹس ایپ گروپس میں بھی، اور ایون آپ جو میرے ساتھ اس وقت ٹک ٹاک پر بھی ہیں، آپ سبوں کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار خادم سلام پیش کرتا ہے، اور میں خداوند کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج پھر سے یہ انمول موقع میری زندگی میں خداوند نے فراہم کیا بطور بانس کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس زندگی بخش کلام کو کچھ دیر کے لیے سیکھنے والا ہو سکوں۔ اور چونکہ ہم سب کے شکر ہے کہ کان ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں، اس لیے میں بھی وہی بات کہوں گا جو یوحنا عارف کے ذریعہ خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ 2 اور 3 ابواب میں 7 بار کہی کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ کے کان کسی اور آواز کی طرف نہ لگیں، ماسوا اس کے کہ ہم خداوند کی آواز کو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے سننے والے ہوں۔ آج کے دن ہم نبوتی کتب میں سے، انبیاء اکبر میں سے دانییل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کتاب کے ہم 11ویں باب میں ہیں، اور اس 11 باب میں بھی مقدس دانیل کی جو رویا ہے، اس رویا کو 10ویں باب سے فرشتہ کھولنے کے لیے تیاری باندھتا ہے، 11ویں باب میں بھی کھولتا ہے، اور پھر ہم 12ویں باب جو اس کتاب کا آخری ہے وہاں بھی ان حقائق کو دیکھیں گے۔ ماضی رفتہ میں ہم نے اس 11 باب کی 36 آیت تک کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بھی بڑے رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے، اور ان آیات میں خدا اپنے بندہ دانیل پر جو مکاشفات کھولتا ہے، ان مکاشفات کو ہم ان ایڈوانس یعنی پیشگی ان آنے والے حالات سے متعلق دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں جو آئیں گے ابھی، لیکن جو حالات مستقبل قریب یا بعید میں ہوں گے، اس حوالے سے خدا پہلے سے ہمیں کچھ ٹریلرز دکھاتا ہے تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں، زندگی کے یہ سانس لے رہے ہیں، اس زمانہ میں میڈیا کے ذریعہ شخصی طور پر اعلانیہ بہت منادی ہو رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا
मसीह खुदावंद की खुशखबरी के कलाम के लोगों को सुनाने के लिए महब है, और दूसरी तरफ हमारा दुश्मन जो अदन से ही हमारे बरखिलाफ काम करता है, वो भी अपने काम में खूब मसरूर है और मसरूफ है। और आप जानते हैं कि खुदावंद और खुदावंद के प्लान की मुखालफत अदन से ही होती चली आई इंसानी जिंदगी में, और यह होती रहेगी जब तक मुनज्जिए आलमीन अपनी आमद की तजल्ली और अपने मुंह की फूंक से उसको हलाक न करे। जहां पर हमने छोड़ा था, यानी स्टडी के दौरान हमने देखा था कि एंटियाकियस एपिफिनस वो बादशाह था, हाकिम था, जो सीरिया यानी शाम का था, लेकिन उस वक्त यह बहुत दूर दूर तक दानियल के जमाने में यह ममलकत फैली हुई थी, और जनूब में इजिप्ट यानी मिस्र की ममलकत, यूनान, रोम और बहुत दूर तक फैली हुई थी। और हमने देखा था कि एंटियाकियस ने 80,000 के करीब यहूदियों का काम तमाम कर दिया 151 क़ब्ल मसीह में, और 40,000 के करीब असीर करके ले गया था। उसने हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन का काम तमाम कर दिया। उसने उन मजहबों पर जहां पर कुर्बानी होती थी सुबह शाम सूअर की कुर्बानी गुजरानी, और एक बुत भी नस्ब किया और कहा कि इसकी पूजा करो। उसने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई, और यह सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। और यही जो एंटियाकियस की बात हम कर रहे थे, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ने जब मत्ती 24:15 में फरमाया कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को देखो, पढ़ने वाला समझ जाए, जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में है, तो यही तो है। लेकिन इसका मतलब यह कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि यह एक लिहाज से एडवांस तो हो चुका है, लेकिन दर हकीकत यह मुस्तकबल करीब और बईद में होगा, जो मुखालिफे मसीह की सूरत में होगा, एंटी क्राइस्ट की सूरत में, और वो वक्त आने वाला है। क्या आप कौमों पर कौमों की चढ़ाई नहीं देखते? क्या आप मजहबी लोगों को इंतहाई जनून में नहीं देखते? मजहब के नशे में धुत नहीं देखते? लोग अपने माबूद की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मीडिया से अगर आप लगाव रखते हैं तो आप देख ही रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, यूएई, सऊदी अरब, इस्राइल, यूक्रेन, रशिया, नाइजीरिया और मोजम्बिक में, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, ओह, जहां तक आप अगर इस मीडिया से लगाव रखते हो, किधरों हो और वेखन तू फुर्सत मिले थे, आपको मालूम होगा कि दुनिया में इस वक्त अहले कलीसिया के खिलाफ क्या क्या हो रहा है। काश के हम
इस वक्त को मसीह खुदावंद की आमद सानी का एक अलार्मिंग साइन समझते हुए अपनी पोशाक की हिफाजत करें और मसीह खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज आपकी तवज्जो एंतियाकियस एपिफीनस चहारम से हटाकर इन आयात की रोशनी में, यानी 37, 38 और 39, जी मैं दानियल 11 की बात करता हूं, इन 3 आयात पर इस कलील से वक्त में मुख्तसर तौर पर बात करूंगा, जो एंतियाकियस से टर्न लेती है बातें, और ये उस मुखालिफे मसीह एंटी क्राइस्ट से मुताल्लिक हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह ना करेगा और ना औरतों की मरगूबा को और ना किसी और माबूद को मानेगा, बल्कि अपने आप ही को सबसे भाला जानेगा। छोटे छोटे हिस्सों में वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह ना करेगा। कौन? मुखालिफे मसीह, एंटी क्राइस्ट। और याद रखिए कि मुखालिफे मसीह की रूह आज भी इस दुनिया में काम करती है। अहद जदीद में लिखा है, जो यस्सु के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने का इकरार ना करे, वो मुखालिफे मसीह है, उसमें मुखालिफे मसीह की रूह है। तो फिर आप खुद सोचें कि ये मुखालिफे मसीह की रूह एशिया में भी, यूरोप में भी, इस कुर्राए अर्ज पर हर जा काम करती है, और वो रूह और ज्यादा वसअत पाती चली जा रही है, उसका दायरा और ज्यादा वसी होता चला जा रहा है। रूह की आंखों से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है और मैं क्या कह रहा हूं। और मुखालिफे मसीह की जब बात करते हैं, मैं अपना नजरिया कोई पेश नहीं करना चाहता, लेकिन उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात हैं बाइबल के उलमा के। लेकिन किसी एक नुक्ता पर मैं जाकर रुक नहीं सकता कि हां यही मुखालिफे मसीह होगा, क्योंकि मैं उन आलमों से बढ़कर नहीं हूं, मैं तो तालिब इल्म हूं। और क्या कहा गया? कुछ लोग रोम में पोप की तरफ इशारा करते हैं कि वो होगा, और पोप के ताज से वो अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये बात मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक नजरिया मानने वाले लोग ऐसे हैं, और आपने बाकायदा मुझसे नहीं कई आलमों से इसके ताल्लुक से पहले सुना होगा, मीडिया भरा पड़ा है। दूसरा नजरिया, कुछ लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट की बाबत भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में नहीं समझता और ना ही मैं कह सकता हूं। तीसरी बात जिसका मैं कहूंगा कि कुछ येलो कलर है, एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक ग्रीन। तो जो येलो सिग्नल है वो मुझे इस्लाम नजर आ रहा है, क्योंकि वो वसत पाता चला जा रहा है और मसीह की मुखालिफ रूह पाई जाती है। एनी हाउ, ये कोई हरफे आखिर नहीं है, ये भी एक ख्याल और एक नजरिया है जो पेश किया गया।
और कई लोग ये कहते हैं कि वो कोई यहूदियों में से एक होगा, whoever, जो कोई भी होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बात कहती है कि वो जो 10 बादशाह होंगे, हमने दानियल की किताब में पहले ही से बात की है, यूरोप के 10 ममलकतें, बादशाहतें, उनमें से एक छोटा सींग निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि वो यूरोप में से होगा। अब वो कौन है, अभी इसकी बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता, और मैं कोई गलत फहमी आपके जहन में डालना भी नहीं चाहता। मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता, क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात हैं और कोई हतमी नजरिया मैं नहीं पेश कर सकता, और ना ही आप पेश कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक नजरिया है नहीं है। लेकिन जो भी मुखालिफ मसीह होगा, उसकी बाबत लिखा है, वो अपने बाप दादा के माबूदों, इलाहों, जिनकी वो पूजा करते थे, पेगन्स, बुत जिनकी वो पूजा करते थे, ना 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 ना, उसको उनकी कोई परवाह नहीं होगी ना। मेरी बला से वो यही कहेगा, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ना औरतों की मरगूबा को, यहां औरतों के एतबार से भी कई और मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर यह कि वो किसी की कोई परवाह नहीं करेगा। कौन क्या है, नो, उसको कोई किसी की परवाह नहीं होगी, और ना किसी और माबूद को मानेगा। यहां माबूद के लिए इब्रानी जबान में एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी यावे खुदा जो एलोहीम है, ये प्लूरल है, सीगा जमा, वो उसकी भी कुछ परवाह नहीं करेगा। आगे लिखा है, बल्कि आप ही को सबसे बाला जानेगा, यानी अपने आप को, कि मैं खुदा हूं, अनल हक, मैं खुदा हूं का यह दावा करेगा। और इस मुखालिफ मसीह से मुताल्लिक ही हम अहदे जदीद में कई जगहों पर पढ़ते हैं कि वो क्या कुछ करेगा। हम इसकी बाबत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन याद रखिए, हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में मुकद्दस पौलुस को थिस्सलुनीके की कलीसिया को कुछ कहते हुए देखते हैं। क्या? वो ये फरमाते हैं कि किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जाए। किसी के फ्रेब में नहीं आना, ये ऐसा होगा क्योंकि उस दिन के आने से पहले ये हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, बरगश्तगी होगी। और आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं? बरगश्तगी, या लोग खुदा को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हां, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग खुदा को फॉलो करते हुए आज नजर आते हैं, खुदाबंद खुदा को। लेकिन एक बात जिसकी कमी हम में पाई जाती है वो ये है कि हम मजहबी तौर पर अकीदत के एतबार से अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रही बात हमारे दिल की, हमारी सोचों की, हमारी नीयत के, हमारी जिंदगी के, हमारे किरदार की, हमारे गुफ्तार की, उसमें कोई खातर खा चेंज नहीं आया। और शरीर को इससे कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो खुश होता है कि हम गिरजे जाएं, जहां मर्जी जाएं, क्रूसेड करें, बैठे उठे लंबिया लंबिया दुआवां, लेकिन कम साडे ओहो ही ने। तो इसलिए वो इस चीज से उसको कोई खतरा नहीं है।
अगर हम रूहानी तौर पर बेदार नहीं हैं तो फिर बरगश्तगी तो है। ये मुझे और आपको अपने आप में सोचने की जरूरत है कि मैं कहां पर हूं। और आयत 38 में लिखा है उसी मुखालफे मसीह के बारे में जो अपने आप को गोया खुदा बनाएगा कि मैं बाला हूं, यानी ऊंचा हूं, सबसे अफजल और आला, और अपने मकान पर माबूदे हिसार की ताजीम करेगा। एक लिहाज से जिस मकाम पर वो होगा उसको अफवाज से घिरा हुआ भी पाएगा, जो उसकी अपनी अफवाज होंगी, यहूदियों और कलीसिया के बरखिलाफ काम करने वाले के तौर पर। और फिर से जो नई हैकल बनेगी, उस हैकल में अपना वाकई हकीकत में अपना बुत नस्ब करने की और कहने की कि मैं खुदा हूं, मुझे सिजदा करो। फिर वो नबुव्वतें 666 वाली और मोहर वाली और ये सब कुछ वहां पर होगा, लेकिन वहां वो वाकई मकरू चीज यानी सुअर की कुर्बानी गुजरानेगा। एंतियाकियस एपिफेनस का सिर्फ ट्रेलर था, हकीकत तो अभी आ रही है। उस वक्त 80,000 का लहू बहा है, अब कितनों का लहू बहेगा वक्त बताएगा। हमें इस बात को देखना है और समझने की जरूरत है। और लिखा है, और जिस माबूद को उसके बाप दादा ना जानते थे। मुकद्दस पौलुस ने अथीने वालों को क्या कहा था कि मैंने तुम्हारे शहर को बुतों से भरा हुआ पाया, लेकिन एक हैरानगी की बात यह है कि एक बुत ऐसा था जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए। तो तुम जिस माबूद को मानते हो नामालूम, वो आपको तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है वो कौन है। आज मैं आपको उसकी बाबत बताता हूं। ये मुकद्दस पौलुस के अल्फाज है। ये पौलुस ने कहा, मेरी अपनी तफसीर थी, लेकिन पौलुस रसूल की यही बात थी जो अथीने में मुकद्दस पौलुस ने कही। मुझे आजाज हासिल हुआ उस जगह जाकर मनादी करने का भी और देखने का भी। लेकिन लिखा है, उसके बाप दादा जिस माबूद को ना जानते थे, सोना और चांदी और कीमती पत्थर और नफीस हदिये देकर उसकी तकरीम करेगा। उस बुत की जो वो नस्ब करेगा कि ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल। और जब हम मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की मार्फत बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब प्रकाश दी पोथी यानी मुकाशफा की किताब को देखते हैं, उसका 13 बाब और उसकी 5 और 6 आयात में तो लिखा है, और बड़े बोलने और कफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। किसको? मुखालिफे मसीह को क्या किया गया? मुंह दिया गया। बोले कफर जितना बोल सकता है। और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 42 महीने, ये 3.5 साल है। यीशु मसीह आने वाले हैं, कलीसिया को, ईमानदारों को जो जिंदा होंगे अपने साथ ऊपर उठा ले जाएंगे, और जो मसीह में सो चुके होंगे वो भी जिंदा हो जाएंगे थिस्सलुनीकियों के खत के मुताबिक, और वो आसमान पर उठाए जाएंगे। फिर वो टाइम पीरियड शुरू होगा 42 महीने वाला, 3.5 साल। एक्चुअली ये 7 साल का अरसा है, लेकिन 3.5 साल के 2 हैफ हैं जिनके बारे में बात हो रही है। उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया, छुट्टी दी गई, थोड़ी रस्सी ढीली छोड़ी गई, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला।
कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफ्र बके इजाजत दी गई, थोड़ी सी रस्सी ढीली छोड़ी गई। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया था। और इसी बाब की ये तो 3 और 4 आयात, 5 और 6 आयात थी, लेकिन मैं 15 आयत में देखता हूं लिखा है, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का अख्तियार दिया गया। उसके पास था नहीं, दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश न करेंगे उनको कत्ल भी कराए। देख लीजिए कि ये किस तरह का मौका होगा। ये आयात खुद बोलती हैं, इनकी इतनी तफसीर करने की जरूरत नहीं है। और आयत 39, वो बेगाना माबूद की मदद से, बेगाना माबूद पॉसिबली कोई इजिप्शियन, पॉसिबली कोई और जो यावे नहीं है, कोई और माबूद, किसी और माबूद की मदद से मोहकम कलों पर हमला करेगा, यानी वो जो महफूज कले हैं उन पर हमला करेगा। जो उसको कबूल करेंगे, मुखालफे मसीह को, उसका कलमा पढ़ लेंगे, लिखा है उनको बड़ी इज्जत बख्शेगा। वाह 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 वाह। और बोतों पर हाकम बनाएगा, किनको? उन्हें जो मुखालिफे मसीह का कलमा पढ़ेंगे। और रिश्वत में मुल्क को तकसीम करेगा, क्योंकि दौलत उसके पास बहुत होगी। आखिरी आयत में आपकी खिदमत में तलावत करना चाहूंगा, और यह है सुलेमान की हिकमत की किताब, यानी इमसाल की किताब। इसका 16 बाब और इसकी 18 आयत। इस आयत में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खुद बीनी है। हलाक होने से पहले तकब्बर कि मैं कोई शय है गया, गुरूर, घमंड। और फिर लिखा है जवाल से पहले, पस्ती से पहले खुद बीनी है, अपने आप को कुछ समझना। यह है मुखालिफे मसीह के काम जो वो करेगा जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, कलीसिया उठाई जाएगी, तो उसके बाद ये उसके काम हैं जो उस वक्त वो करेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो मेरे साथ इस वक्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खुदारा अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के लिए तैयार कर लीजिए। हालात और वाकयात इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी तौर पर हमें बताते हैं कि अब यीशु की आमद बहुत करीब है, वो मजीद देर नहीं करेगा। अपनी पोशाक की हिफाजत कीजिए मोमिनो। और अगर आप जिन्होंने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, उसके बगैर गुजारा नहीं है। कौमें और उम्मतें आज भी हर रोज जोक दर जोक खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर आबे हयात का प्याला पीती है, जिंदगी का जाम पीती है और अपने गुनाहों से तौबा करती है। शायद आप में से किसी की जिंदगी में यह एक आखिरी मौका हो, अगर इससे पहले मसीह खुदावन को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो आज मौका है कि उसे अपने दिल में उतार लीजिए। कल किसने देखा है? आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए, और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। ऐ कुद्दूस और बरहक खुदावंद, शुक्रगुजार हैं आज आपके कलाम की इन अनमोल
बेशकीमत और खूबसूरत बातों के लिए। ऐ खुदावंद हमें फजल बख्शिए कि हम आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी के लिए एहसन तरीका से इस्तेमाल हो सकें, और हम जो ऑलरेडी निजात याफ्ता है, आपकी मर्जी के मुताबिक जो कलाम में हमें मिलती है, हम अपना जीवन गुजारने वाले हो सकें। और खुदावंद मैं दुआ करता हूं उनके लिए जो हमारी इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं लेकिन अभी तक अपना आप आपके सुपुर्द नहीं किया। यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में काम कीजिए और यह कलाम उनका पीछा करे। बिस्तर पर उनको सोने ना दे जब तक कि वो अपनी जिंदगी का फैसला ना कर लें और अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके सुपुर्द ना कर दें। ओ खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आप जल्द आ रहे हैं। हमें रास्तबाजी से जिंदगी बसर करने का और वफादार रहने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट फिर यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास वक्त हो मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर जाकर कुतुब पढ़िए। दानियल की तफसीर, मुकाशफा की तफसीर, ऑनलाइन उर्दू और अंग्रेजी में फ्री ऑफ कास्ट कोर्सेज। अरे और क्या चाहिए। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। हैव अ ग्रेट टाइम। www.newlifeinstitute.org